Hello children, welcome back to my channel Online Physics Class by Niharika Tiwari. So we are again going to continue with the same series of class 9th. Okay, class 9th, chapter 2, motion in one dimension, and this will be our lecture 4. So children, if you have not seen my previous videos, go and check there I have already explained about the topic wise topic of each and every concept. ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा इस चैप्टर का जो आपको नहीं समझ में आएगा. मैंने हर एक चीज़ वहाँ पर डिस्कस की है. आई हैव डिस्कस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, everything I have discussed till non-uniform speed. Now today I am going to continue after that. That is your instantaneous speed as well as instantaneous velocity. Instantaneous speed and instantaneous velocity. Now what is the meaning of instantaneous? Instantaneous का मतलब क्या होता है? Instantaneous means children for a very short time, बहुत छोटे समय की जो भी आप वैल्यू निकालते हो, for very short time, या आप कह दो कि for a very short instant. अगर आप कोई भी चीज़ either speed या velocity बहुत ही छोटे समय के लिए, फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, और यू कैन से फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम यू आर फाइंडिंग स्पीड और वेलोसिटी, देन इट इज नोन एज इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. बस आपको इतना याद रखना है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला चिल्ड्रन? इंस्टैंटेनियस मतलब क्या हुआ? फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इफ यू आर फाइंडिंग द स्पीड or velocity, then that term is known as instantaneous speed or velocity. Now the formula for instantaneous speed is distance traveled in short interval of time upon time traveled. Okay, what is the formula? Distance traveled in short interval of time upon time travel. ठीक है? As you know, the formula for speed is what? Distance upon time. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसी तरह इंस्टैंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? क्योंकि इंस्टैंटेनियस वर्ड यूज हो रहा है तो इट मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन टाइम ट्रैवल. ओके, सेम वे instantaneous velocity is also there. Okay, instantaneous velocity is also there, right? Instantaneous velocity, what will be the formula for instantaneous velocity? Distance की जगह क्या हो जाएगा? Displacement travel in short interval of time. Okay, upon time travel. Okay, right? If I speak in words, so for a body moving with variable velocity, the velocity of the body at any instant इट्स कॉल्ड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी. जब हम जिस तरह हम स्पीड निकालें इंस्टैंटेनियस स्पीड, उसी तरह सेम फॉर्मूला विल बी फॉर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी दैट इज, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डायरेक्शन, सो हेयर डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो एवरेज स्पीड क्या होता है चिल्ड्रन? सपोज यू वेंट टू अ मार्केट, वहाँ पर बहुत भीड़ है, क्राउडेड है, ठीक है, तो उस वक्त आपकी क्या होगा? आप कभी स्पीड कम करोगे, कभी ज़्यादा करोगे. सो इन दैट केस इफ समबडी आस्क यू व्हाट वाज योर स्पीड इन द मार्केट, तो यू कांट से ना दैट फर्स्ट माई स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर, देन इट वाज 20 किलोमीटर पर आवर. नो, देयर यू विल यूज द वर्ड एवरेज, दैट ओवरऑल एवरेज स्पीड वाज total distance whatever you covered in every total time, right? Same way if somebody asks you that you went to the north direction, there what was your average velocity, so you will say displacement, total displacement upon total time taken, right? I hope this point is clear to you. Okay children, same way as I have explained in the previous video about uniform speed, same way you have uniform velocity and non-uniform velocity. Okay, but children,
in case of, if I talk about uniform velocity, okay, uniform velocity. So what is uniform velocity, children? Uniform velocity means when a body travels equal distances in a particular direction in equal interval of time. Suppose you are traveling towards north and there you cover equal distances in equal time in a particular direction. ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप इक्वल डिस्टेंसेस 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर in equal interval of time, 1 hour 1 hour 1 hour, and in particular directions, let us say north direction, then it is known as uniform velocity. But children, if I talk about non-uniform velocity, then here you have 2 to 3 conditions for non-uniform velocity. Now what is the very first condition? Suppose for non-uniform velocity you have 2 to 3 conditions. Suppose it may be that you cover unequal distances in equal interval of time in a particular direction, then also you will say that what is the case? Non-uniform velocity. Unequal distances mean you cover 1 kilometer, then 2 kilometer, 3 kilometer, so 1 kilometer in 1 hour, 2 kilometer in 1 hour, 3 kilometer in 1 hour. So unequal distances you are covering, okay, unequal distances you are covering in equal interval of time. पहले 1 घंटे में आपने 1 किलोमीटर कवर किया, दूसरे 1 घंटे में आपने 2 किलोमीटर कवर किया, तीसरे घंटे में आपने कितना कवर किया? 3 किलोमीटर कवर किया. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन यू कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन equal interval of time. Now there are many more conditions, okay, for non-uniform velocity, children. Okay, like suppose it may be that when you will say that the body is having a variable or non-uniform velocity. Suppose children you are moving on a circular path. You are moving on a circular path. तो circular path पे क्या होता है children? Suppose the body is at point this point. तो at each and every point body यहाँ आ गई तो body का direction कहाँ है? यहाँ है. बॉडी यहाँ गई, बॉडी का डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ. बॉडी यहाँ गई, बॉडी का डायरेक्शन कहाँ है? यहाँ है. सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट व्हेन द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, तो क्या हो रहा है? इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, okay, so then what is happening? Speed is uniform, means the body is covering equal distances in equal interval of time, but velocity is variable. velocity क्या है? वेरिएबल है. क्यों वेरिएबल है? क्योंकि बॉडी का जो डायरेक्शन है, पॉइंट ऑफ डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज चेंजिंग. मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. सपोज द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड एट 32 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वो तो ठीक है, बट फिर भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल है. क्यों वेरिएबल है? क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कई सारे कंडीशंस हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहला कंडीशन बताया कि द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो जाती है. देन ऑल्सो वी से दैट द बॉडी इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दूसरा केस हो सकता है कि मैग्नीट्यूड इज सेम, but what is changing? Direction is changing. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको सर्कुलर पाथ के बारे में बताया कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो मान लो 32 किलोमीटर पर आवर के साथ मूव कर रही है तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसके पास? बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो द अदर कंडीशन इज मैग्नीट्यूड इज सेम एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग. नाउ द थर्ड कंडीशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दैट both magnitude and direction is changing. ठीक है, जैसे अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यू आर कवरिंग
अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, हमेशा याद रखना टाइम हमेशा इक्वल इंटरवल में लेते हैं, ओनली डिस्टेंस चेंजेस। तो अब क्या हो रहा है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे कभी उसकी स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, कभी 14 किलोमीटर पर आवर है, कभी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चिल्ड्रन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बार और बता दूं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के 3 केस होते हैं। इट हैज 3 केसेस। पहला केस है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम, जैसे कि बॉडी इज कवरिंग unequal distances in equal time, like you are moving on a crowded road, crowded area in a particular direction, so you are covering unequal distances in equal time, so that's the case of non uniform velocity. दूसरा केस है magnitude is constant, magnitude is same या constant but direction is changing, मतलब when you are moving on a circular path with uniform speed, मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हो विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म मतलब आपकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन सर्कुलर पाथ, रीजन योर डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज changing. So magnitude is same but direction is changing. That's the case of non-uniform velocity. And what is the third case? Means both magnitude and direction, both magnitude plus direction is changing. Okay, that means आप again if you are moving on a circular path with नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मीन्स उस वक्त आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा. दिस आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. चिल्ड्रन लेट अस से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दोनों केस लेंगे, ठीक है. सपोज दिस इज फर्स्ट केस, सेकेंड केस. यहाँ पर बॉडी फर्स्ट केस में इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, तो चिल्ड्रन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म. अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो बॉडी मस्ट बी कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉडी के हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो स्पीड तो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. लेकिन फिर भी हम क्यों कह रहे हैं वेलोसिटी वेरिएबल है? क्योंकि वेलोसिटी में बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. वहीं पर जो मैंने आपको थर्ड केस बताया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, कब होगा? जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम. तो उस टाइम सपोज बॉडी की वेलोसिटी कहीं 14 किलोमीटर पर आवर है, कहीं 32 किलोमीटर पर आवर है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. तो दैट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सिंपल है कि बॉडी इज कवरिंग अ इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं. व्हाट इज द फर्स्ट केस? फर्स्ट केस क्या है? बॉडी कवर्स व्हाट? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम. ठीक है. दूसरा केस क्या है चिल्ड्रन? बॉडी इज मूविंग along a circular path. That time the body is having the magnitude same. If the body is moving in a circular path with uniform speed, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन क्या चेंज होगा? डायरेक्शन. तो देन ऑल्सो यू विल से द बॉडी इज हैविंग अ वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो तीसरा केस क्या है कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करी विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो दोनों चेंज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा. तब भी आप क्या बोलोगे? द बॉडी इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आई होप चिल्ड्रन दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर.